শিলিগুড়ি শহরের অবৈধ নির্মাণ ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবার আরও কঠোর অবস্থান নিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। প্রশাসনিক বৈঠকের পর তার কড়া মন্তব্যে কার্যত স্পষ্ট হয়ে গেল, শহর জুড়ে চলা অবৈধ নির্মাণ ও বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ড রুখতে এবার বড়সড় অভিযান শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রাথমিক প্রস্তুতি, আর খুব শীঘ্রই মাঠে নামতে পারে একাধিক জেসিবি ও প্রশাসনিক দল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে 2 ডজন জেসিবির অর্ডার দেওয়া হয়েছে। মোট 24টি জেসিবি আসছে। এরপর শহরে যত অবৈধ নির্মাণ রয়েছে সবকিছুর উপরেই ধারাবাহিকভাবে জেসিবি চলবে। তার এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ব্যাপক চর্চা। সাংসদ আরও জানান, অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে বুলডোজার অভিযান শুরু হয়েছে এবং শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণ চিহ্নিত করার কাজও চলছে। যারা নিয়ম ভেঙে নির্মাণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে করা সতর্কবার্তা দিয়ে তিনি বলেন, নিজেরা ভেঙে ফেলুন, না হলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। তার এই বক্তব্যে প্রশাসনিক কঠোরতার বার্তা যেমন স্পষ্ট, তেমনই বাসিন্দাদের জন্য একটা পরিষ্কার সতর্ক সংকেত পৌঁছে গেছে। राजू बिस्ता की बोलेছেন শুনবো। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीज़ों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तुड़ाई कर लो, तोड़ के रख दो, मुझे लगता है वो ज़्यादा उचित। मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि 45 दिन में जो बीएसएफ को लैंड हैंडओवर करने वाली है, आपने इसके बारे में कोई स्टेटस के बारे में पूछताछ की है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी कह चुके हैं और वो पहली कैबिनेट में पारित हो चुका है। 45 दिन के अंदर में प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 45 दिन के अंदर पूरी जमीन जो है, जो भी बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को चाहिए, उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। लास्ट आज ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में गई थी, जहाँ पे चोर चोर स्लोगन, उसको प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरी बात, कल तक जिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, मतलब भूतपूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, उनको कोर्ट अदालत पे कभी विश्वास नहीं था, भारत के संविधान पे विश्वास नहीं था, भारत सरकार को नहीं मानती थी। आज स्वयं कोर्ट गई है, तो ठीक है। मुझे लगता है अगर बुद्धि ठीक हो रही है तो मैं उसमें क्या कर सकती। এরপর এই নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক একটি জল্পনা শুরু হচ্ছে। সংবিধান থেকে আদালত কিছুই মানতেন না, এমন দাবিও তিনি করেছেন। এদিন বৈঠকে শুধুমাত্র অবৈধ নির্মাণ নয়, শহরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রশাসনিক ইস্যু নিয়ে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে বসে এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার, জেলা শাসক, দার্জিলিং জেলা পুলিশ সুপার, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিসিপি সহ একাধিক উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক। বৈঠক শেষে সাংসদ জানান, শহরে মাদক চক্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একটি তালিকা তার কাছে রয়েছে। শিলিগুড়িকে মাদক মুক্ত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গুন্ডা ট্যাক্স আদায়, অবৈধ টোল প্লাজা, বেআইনি মদের দোকান এবং অনুমোদনহীন পাব ও বারগুলির বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট করেন তিনি। সাংসদের কথায়, প্রশাসনের এই অবস্থান কোনো সাময়িক পদক্ষেপ নয়, বরং একটি বৃহত্তর পরিবর্তনের অংশ। তিনি বলেন, এটি পরিবর্তনের সরকার। এই সরকারের আমলে কোনো রকম অবৈধ কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। তার এই মন্তব্যে প্রশাসনিক কড়াকড়ির পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কি বললেন তিনি, শুনব। नई सरकार बनते ही जिस तरह के गाइडलाइंस आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आ रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन, पुलिस अपना काम कर रहे हैं। और मेरा भी कई विषयों को लेकर के, विशेष करके सिलीगुड़ी दार्जिलिंग क्षेत्र को लेकर के कुछ इश्यूज थे जो मैंने उनके साथ डिस्कस भी किया। और मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा
कि कुछ भी इलीगल एक्टिविटी चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे सिलीगुड़ी हो, चाहे कालिम्पोंग हो, इस क्षेत्र में नहीं चलेगा। और हमारे क्षेत्र में मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे इलीगल माइनिंग की एक्टिविटी हो रहे हैं। लगभग सारे बंद है, एकाध अभी भी चल रहे हैं। वो तत्काल रूप से जो भी इलीगल हो वो बंद होना चाहिए। जहाँ पे गरीब दुखी जनता नदी के पास में जो रहते हैं, अपने हाथ से कुछ मिट्टी बालू उठा करके अपना पालन पोषण करते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नदियों में आप जेसीबी चला करके नदी का शोषण करोगे, ये नई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा बड़ा विषय है कि ये माइनिंग होने के बाद जिस तरह से कभी एयरपोर्ट का नाम लेकर के, कभी एलिवेटेड रोड बालासन रोड का नाम लेकर के भारी मात्रा में बालू गिट्टी की चोरी होती है और वो अलग अलग जगह पे भेजा जाता है, ये भी बंद होना चाहिए। दूसरा बड़ा विषय था कि हमारे इस क्षेत्र में ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बहुत अधिक मात्रा में है। सारा ड्रग्स मालदा से बन के आता है और सिलीगुड़ी के बागडोगरा में आता है, माटीगाड़ा में आता है, बागडोगरा थाने में हलाल गांव में आता है और उसमें टीएमसी से जुड़े हुए जो अंचल लेवल के नेता भी उसमें शामिल हैं। और मैं टीएमसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो गुंडा होता है वो गुंडा ही होता है, उसकी कोई पार्टी भी नहीं होती, उसकी कोई जात भी नहीं होती। और ये बहुत बड़े पैमाने में ड्रग्स का कारोबार मालदा के थ्रू हमारे इस क्षेत्र में होता है। हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आज कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में और गांव-गांव में बहुत इजीली ड्रग अवेलेबल है। उसके कारण हमारी पूरी युवा पीढ़ी समाप्त हो रही है। एक तो युवा पहले से ही दुखी है, उसके पास रोजगार नहीं है और ऊपर से ड्रग्स उसके हाथ में लग जाता है, जिसकी लत लग जाने के बाद पूरा परिवार बर्बाद होता है, पूरा समाज बर्बाद होता है और हमारी पूरी जो है युवा पीढ़ी का सर्वनाश होता है। जो भी ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको सावधान करना चाहता हूं। मैं नाम भी पढ़ सकता हूं, मेरे पास नाम भी है, लेकिन मैं चाहता हूं ये पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम करेगी। শিলিগুড়ি শহরের অবৈধ নির্মাণ ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এবার আরও কঠোর অবস্থান নিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। প্রশাসনিক বৈঠকের পর তার কড়া মন্তব্যে কার্যত স্পষ্ট হয়ে গেল শহর জুড়ে চলা অবৈধ নির্মাণ ও বিভিন্ন বেআইনি কর্মকাণ্ড রুখতে এবার বড়সড় অভিযান শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রাথমিক প্রস্তুতি, আর খুব শীঘ্রই মাঠে নামতে পারে একাধিক জেসিবি ও প্রশাসনিক দল। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্তা বলেন, উত্তরপ্রদেশ থেকে 2 ডজন জেসিবির অর্ডার দেওয়া হয়েছে, মোট 24টি জেসিবি আসছে। এরপর শহরে যত অবৈধ নির্মাণ রয়েছে সবকিছুর উপরেই ধারাবাহিকভাবে জেসিবি চলবে। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।